establishing ACP, Assured Career Progression, to implement old pension system in laptop sectors with HPSCB and Corporation Council and committees under Urban Development Department. To fill up all the posts lying vacant various departments, public sector undertakings, universities in the state on regular basis. To redress certain pay anomalies arise due to departure from the pay ACP etc. from the government of Punjab. To regularize all the contract employees in the state as per previous practice twice in the financial year. To enhance superannuation age of class 4 employees 58 to 60 years. To grant notified holidays to daily wage employees appointed under the employment assistance scheme in the state. To provide jobs to the kids and teens of deceased employees under the employment assistance scheme and to make suitable amendment in the relevant policy. To provide HRTC a status of roadways under the state government. To keep HPSCB integrated entity and stop its privatization. To grant option with regard to open and fixed medical loans on the revised pay structure. To revise pay allowances consequent upon the pay revision of and HRA on the pattern of central government employees. To provide appropriate financial assistance to state corporate sectors, autonomous bodies, and to enable them to discharge their statutory obligations towards their employees and pensioners. To bring all the corporate sectors employees who are governed under EPF, CPF, etc. in old pension system on the analogy of their counterparts in the state. To provide medical reimbursement facility to the employees of the left of corporate sector on the analogy of government department. To review the decision taken regarding curtailment of study leave to 40% and exempt the educational institution from where the benefits of such study leave is transferred to the student from this amendment. To bring all the Jilla Parishad Karmachari under department concerned and grant pay and perks and social security to them on the analogy of their counterpart in the state. To withdraw a move to form a state cadre for Patwari and Congo of Revenue Department as it will unsettle the petition settled since law. ये 20 जो 20 के मामले जिस पे लास्ट टाइम जो रिफाइल की थी. धन्यवाद. भारत माता की जय. जय महासंघ, कर्मचारी महासंघ की जय. आज इस महासंघ की तरफ से जो मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं चेयरपर्सन अपने प्रदेशाध्यक्ष श्री वीरेंद्र चौहान जी का और मंचासीन हमारे सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी श्री हीरालाल जी का, अपने खरवाड़ा जी का और गुलेरिया जी का, साथ में हमारी वाइस प्रेसिडेंट मैम और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य कर्मचारियों का हार्दिक दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ. सर, मेरे 2-4 एजेंडे हैं जो कि मुझे लगता है कि कर्मचारियों को अपने हक के लिए और अपनी जो एक आवाज़ है उसको उठाना चाहिए, जिसमें इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है. आपका डिपार्टमेंट कितना बड़ा, वो भी बता दो, जानकारी तो पता हो जाएगी उसको ना. डॉक्टर्स एसोसिएशन कितने बड़े पूरे प्रदेश के अंदर है और क्या है? जैसे कि अभी मैं उसी मुद्दे पे आऊँगा सर, धीरे धीरे थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेंगे. 10 मिनट देंगे. उसमें थोड़ा सा ब्रीफली मुझे लगता है कि कर्मचारियों को यहाँ से एक संदेश भी जाना चाहिए. अगर हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो एक संदेश संगठितता का भी जाना चाहिए कि हम संगठित होके अगर चलेंगे तभी कुछ ना कुछ यहाँ से ले पाएंगे और जो जिन मुद्दों के लिए महासंघ बना है उसके लिए जो है कहीं ना कहीं हम जो है खरा उतर पाएंगे. तो सर, आपके माध्यम से इफ यू परमिट मी, अलाउ मी, तो मैं जैसे कि हमीरपुर मेडिकल अफसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और आपके इस महासंघ में वाइस प्रेसिडेंट स्टेट हूँ, तो कहीं ना कहीं बात हमारे मेडिकल फेडरेशन की तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारा कैडर है
जैसे कि सर ने भी बताया, लगभग 10,000 का कैडर हमारे मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन और जो कर्मचारी हैं उसका है, जिसमें जो है मेडिकल एजुकेशन अलग है, हेल्थ हमारी जो सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, 2 तरह के डिपार्टमेंट हमारे इसमें आते हैं, डीएमई और डीएचएस, जिसको कि विभाजित करने का जो है वो पूरा दम लगाया जा रहा है कि कैडर में किस तरह से जो है वो डिफरेंसेस लाए जाएं, ताकि हम लोगों की जो संयुक्तता है वो उसमें भी हम प्रभावित हों। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि संगठित हैं तभी हमारी जो है वो सुरक्षा भी है, हितों की भी सुरक्षा है और हकों की भी। इसमें जो सर जो हमारे एसोसिएट जैसे जो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड रहते हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में हमारे जाते हैं, वो कैडर होता है डीएमई का। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें जो है वो टीचिंग फैकल्टी वगैरह प्रोफेसर जितने भी हमारे एसोसिएट्स होंगे वो आएंगे। और डीएचएस में ऐसा होता है कि इसमें सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, जितने भी हमारे जितने भी होंगे सर, जो इन जनरल हमारे इसमें होते हैं। लेकिन दोनों कैडर जो है तो एक ही फेडरेशन सर। तो एचएमओ की तरफ से सर मैं जो ये महासंघ बना है सर, इसमें मैं एचएमओ की तरफ से अपने इस महासंघ की जो चाहूँगा कि सर हमारे मेडिकल जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, चाहे वो डीएमई के हों, चाहे डीएचएस के हों, चाहे वो क्लास 1 ऑफिसर हो, चाहे वो क्लास 3, क्लास 2, क्लास 4 हो, एनी काइंड ऑफ वर्कर सर प्रोफेशनली, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी आपने देखा होगा कि असॉल्ट की जो हमारे असॉल्ट होता है हमारा डॉक्टर्स का या किसी भी प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड सर, हमारे को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं इस महासंघ की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जब कर्मचारी है तो वो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं है, वो कर्मचारी भी है, या वो एक क्लास 4 ही नहीं है, या वो आउटसोर्स सोर्स में भी लगा है तो वो एक कर्मचारी है। तो उसके पक्ष में आकर सभी कर्मचारी, जो महासंघ से मेरी अपील रहेगी कि वो भी हमारा सपोर्ट और उसमें यूनिटी दिखाएं। तो मेरी तरफ से सर एचएमओ की तरफ से मैं ये चाहूंगा कि हमारे असॉल्ट जब हमारे साथ होते हैं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करा जाए और यूनिटी दिखाई जाए कर्मचारी महासंघ की तरफ से भी। सेकंड सर, हमारा एसीपीएस का एक जो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है, जिसके चलते जो है वो मेडिकल लाइन में भी सर एक एमओ लगता है, वो एमओ ही रिटायर हो जाता है। तो हमारे जो एसोसिएशन की तरफ से रहता है कि हम लोगों का एक प्रोग्रेशन हर फील्ड में जो है वो 8 साल या 10 साल पे हमें जो है वो प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन हमारे इस केस में कहीं नहीं है। अभी रिसेंट में पंजाब में ये एसीपीएस जो है वो लागू कर दिया गया है। तो हम इस महासंघ की इस मंच के माध्यम से मैं आज अगर यहाँ का आपके